السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين يا رب العالمين. جی، سب سے پہلے تو آپ سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق علم التجوید کورس کے سبق نمبر 8 میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کے ساتھ محب الدین و شریعہ کالج سے آپ کی بہن بریرہ عطا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مل کر اس کلاس کا بطور خاص قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے پچھلے 7 اسباق میں تحفۃ القاری کا ایک حصہ پڑھا، جس میں ہم نے ملتی جلتی آوازوں والے حروف کی پہچان، ان کو پڑھنے کا طریقہ، ان کے مخارج سیکھے۔ پھر اس کے بعد ہم نے 2-3 پریکٹس کلاسز لیں، جس میں ہم نے قرآنی قاعدہ سے اس کے 3-4 اسباق پڑھے، اس میں جو بھی پیچیدہ سی چیزیں تھیں وہ ہم نے دیکھی ہیں، سیکھی ہیں، پڑھی ہیں الحمدللہ۔ تو آئیے آج دیکھتے ہیں کہ آج کے سبق میں ہم کیا سیکھیں گے۔ ہم نے اب تک کلمات، حروف سیکھے، حروف کے ساؤنڈ وغیرہ سیکھے، ان کو ہم نے دیکھا کہ اشکال کیسی ہوتی ہیں اور چیز کی، اور نام کیسے ہوتے ہیں، ان کی آوازیں کیسی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم انہی کلمات کو حرکات کے ساتھ سیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی حرکات کسے کہتے ہیں؟ زبر، زیر اور پیش کو، ٹھیک ہے۔ حرکات، حرکت کی جمع ہے حرکات، اور حرکات کیسے کہتے کسے ہیں؟ زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ آج کی کلاس میں ہم انشاءاللہ بفضل اللہ تعالی زبر، زیر اور پیش کی ادائیگی سیکھیں گے، یعنی ان کو ادا کیسے کیا جاتا ہے، یعنی جب کسی حرف پر زبر، زیر یا پیش لگ جائے تو ان حروف کی ادائیگی کیسے ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو زبر کا بتایا گیا کہ زبر کو کیسے ادا کیا جاتا ہے۔ زبر سیدھا منہ کھول کر ادا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سیدھا منہ کھول کر زبر کو ادا کیا جاتا ہے۔ جیسے اب یہ ہم نے پہلے با کو کیا پڑھا تھا؟ با، تا، تا، ایسے ہی پڑھا تھا نا۔ لیکن اب ہم ان کو حرکات کے ساتھ پڑھیں گے، تو حرکات جب ہم پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی مزید آگے آگے دیکھتے ہیں کہ ان کو ہم نے کیسے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں زبر کو پڑھنا ہے، جب با کے اوپر زبر آ گئی تو یہ بن جائے گا با، با، تا، تا، ٹھیک ہے۔ سیدھا منہ کھولیں، با، تا، تا۔ اور پھر زیر، زبر، زبر ہمیشہ یہ حرف کے اوپر ہوتی ہے، جیسے یہاں پہ آپ کو حروف پر نظر آ رہی ہے نا، ٹھیک ہے۔ پھر اور اس کی آپ نے شکل بھی دیکھی ہوگی، ترچی ترچی سی شکل ہے حرف کے اوپر۔ پھر اسی طرح زیر، زیر کو ادا کیسے کرتے ہیں؟ ہونٹوں کو نیچے کی طرف جھکا کر، ہونٹوں کو نیچے کی طرف جھکا کر زیر ادا کیا جاتا ہے، جیسے بی، بی، ٹی، ٹی۔ اور آپ نے دیکھی ہے زیر کی شکل کیسی ہے؟ زبر جیسی ہے، ترچھی لائن ہی ہے لیکن حرف کے نیچے ہے۔ زبر حرف کے اوپر ہوتی ہے، زیر حرف سے نیچے ہوتی ہے۔ اور دیکھا نا آپ نے ان کے ساؤنڈ، با پر زبر ہے تو با، یعنی زبر کا ساؤنڈ آ جاتا ہے ہمارے پاس ا، زیر ای۔ اور پیش کا ہم دیکھتے ہیں، پیش کو کیسے پڑھتے ہیں؟ ہونٹوں کو گول نہ تمام بند کر کے، کیا مطلب؟ ہونٹوں کو گول کریں لیکن ان کو بند نہیں کریں، نہ تمام بند کر کے، مطلب ہونٹ آپس میں بند نہیں ہونے چاہیے، پورے کے پورے جڑ نہیں جانے چاہیے، گول تو کریں لیکن جڑنے نہیں چاہیے آپس میں،
बिल्कुल ही बंद नहीं होने चाहिए। ठीक है, जैसे बू, देखिए बू, बू बोलते हैं ना, होंठों के दरमियान थोड़ा सा फासला बाकी रह जाता है, यानी होंठ खुले रहते हैं, गोल तो होते हैं लेकिन बंद नहीं होते मुकम्मल तौर पे, बिल्कुल सेंटर से थोड़ा मुंह थोड़ा खुला ही रह जाता है। बू, तू, तू। ठीक है, यानी हमारे जो होंठ है ये आपस में व्यवस्था नहीं होते, जुड़ते नहीं है, गोल तो होते हैं लेकिन बंद नहीं होते। तो फिर आपने देखिए पेश की शक्ल कैसी है, हम कह सकते हैं पेश की शक्ल वाऊ जैसी है, वाऊ जैसी। और ये हमेशा हर्फ के ऊपर होती है। तो जब बा पर पेश आया तो क्या साउंड बना बा का, बू, बू। यानी पेश का साउंड क्या हुआ, ऊ, जबर अ, जेर ई, और पेश का साउंड हुआ ऊ। फिर जिन जिन हरूफ पर ये आती है उन्हीं हरूफ के हिसाब से ही इनके साउंड बन जाते हैं। जैसे जबर बा पर थी तो साउंड क्या बन गया, ब। ता पर थी तो त, ता पर आ गई है तो त। फिर जेड बा के नीचे है तो बी, ता के नीचे ती, ता के नीचे ती, डी, टी, री। इसी तरह पेश बा पर है तो बू, ता पर है तो तू, ता पर है तो टू, बू, तू, टू। ठीक है, अब वो आपको तंबीह क्या कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि पेश दोनों होंठों के पूरी तरह गोल होने से अदा होता है। क्या मतलब, होंठ गोल करने हैं लेकिन बचना किस चीज से है, फिर होंठों का दायरा जितना कम होगा पेश उतना ही सही अदा होगा। मतलब अब देखिए, पेश का साउंड गोल हो जाता है ना, तो अब इसको बोलते वक्त ये नहीं करना होंठ पूरे गोल ही कर ले हम। ठीक है, यानी होंठ गोल होंगे लेकिन उनका बिल्कुल दायरवी शक्ल में गोल नहीं हो जाएंगे। जैसे बू, बू, अब हम इसको कहें बू, बू, पूरा ही गोल करके तो वो वैसे ही बंद हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो आवाज ही नहीं बनती, बू, बू, है ना, सही से आवाज नहीं बन रही। तो हम पेश को अदा करते वक्त होंठ गोल तो करेंगे लेकिन उनका दायरा, बिल्कुल उनका दायरा नहीं बना, दायरवी शक्ल में गोल नहीं करना। ठीक है, फिर वो सही अदा होगा, वरना सही अदा नहीं होगा पेश अगर हमने होंठों का बहुत ज्यादा दायरा बना दिया तो। फिर मजीद हम देखते हैं जबर जेर और पेश की मश्क। कहते हैं सही तरीके के साथ अब इनको हमने अदा करना है। जबर, देखिए अब जीम पर जबर आ गई, ज, आ, ल, ज, आ, ल, ज, आ, ल, जअल, अ, द, अद, ल, अदल, स, ज, सज, द, सजद। अब आपने ये करना है, हमने जो पिछले 7 8 असबाक पढ़े हैं ना, मिलती जुलती आवाजों वाले हरूफ, वो हमने सीखे हैं कि कैसे हमने उनकी आवाजों में फर्क करना है, क्या तरीकेकार था उनकी अदायगी में। अब जब आपने हरकत के साथ कलिमात को अदा करना है तो उन असबाक को मलहूज खातिर रखना है, यानी उन हरूफ का बहुत ज्यादा ख्याल करना है आपने, उनको सही तरीके से अदा करना है। अब हम जेर की तरफ आए, अगर जेर, जेर एक तिरछी लाइन है जो कि हर्फ के नीचे होती है ना, तिरछी लाइन हर्फ के नीचे। जेर का साउंड क्या बताया था मैंने, ई। अब ये हमजा के नीचे जेर आ गई है तो हमजा का साउंड भी आ से ही शुरू होता है ना, हमजा साउंड बने तो आ ही होता है, तो जेर का साउंड ई। तो अब हमजा के नीचे आ गई है तो ये हो जाएगा ई। बा के नीचे बी, लाम के नीचे ली, तो क्या पढ़ेंगे इसको, ई, बी, ली, ई, बी, ली। हमने इसका तरीका क्या पढ़ा, होंठों को नीचे की तरफ झुका कर जेर अदा होता है, ई, ई, बी, ली, ई, बी, ली, ई, बी, ली, ई, बी, ली। फिर पेश, पेश का हमने क्या पढ़ा था, होंठों को गोल न तमाम बंद करके, यानी होंठ गोल तो करेंगे लेकिन उनका दायरा ही नहीं बना लेना कि वो जुड़ ही जाएं, पेश अदा करते वक्त खुले ही न रह पाए, एक दूसरे में व्यवस्थित ही हो जाए, ऐसा गलत होगा। ठीक है, तो इसको पढ़ के देखते हैं। सो, सो, हु, फुन,
सुहुफुन, कु तु कुतुबुन, कुतुबुन, फुउ फुउलु, फुउलु फुउलु। ठीक है। अब देखिए इस सबक में जितने भी कलिमात हैं, अगर जबर वाले हैं सिर्फ जबर के साथ हैं, जेर वाले हैं तो सिर्फ जेर के साथ हैं, पेश वाले हैं तो सिर्फ पेश के साथ हैं। अब तीनों इकट्ठी हरकत। अब इतना सीख लेने के बाद हमें इस काबिल हो जाना चाहिए कि हम एक ऐसा लफ्ज अच्छे तरीके से पढ़ सकें जिसमें हरकत हैं। और हरकत से क्या मुराद है? जबर, जेर, पेश। जैसे ये आपके सामने कलिमात दिए गए हैं। सबसे पहले पेश के साथ आ गया खो, खो। ठीक है। खो ली को, खोली को, दुइय, दुइय, कुरी, कुरी, उखिद, उखिद, बुगिय, बुगिय, जुमी, 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 حشي حشير حشير كتي كتب كتب। ठीक है। मजीद हम देखते हैं कि मजीद इसको किस तरह से अच्छे अंदाज में पढ़ना है। तो ये कुछ तंबीहात की गई हैं आपको कि हमने हरकत को अदा करते वक्त किस चीज से बचना है। सबसे पहली बात तो ये है, हर एक हरकत में दूसरी हरकत की कैफियत और हालत पैदा करने से बचना है। कौन सी कैफियत और हालत? अभी जो हमने पहली स्लाइड में देखा था कि जबर को कैसे पढ़ना है, सीधा मुंह खोलकर, जेर को होंठों को नीचे की तरफ झुकाकर, और पेश को होंठ गोल करके लेकिन ना तमाम बंद करके। ये इनकी कैफियत और हालत है। अब वो कह रहे हैं हर एक हरकत में, यानी जबर को पेश की हालत में, पेश को जेर की हालत में, जेर को पेश की हालत में, इस तरह से नहीं पढ़ना। जैसे जबर है ना, जबर में होंठों को अगर हमने गोल कर दिया या होंठों को नीचे की तरफ झुका दिया तो ये गलत है। क्योंकि होंठों को गोल कहाँ पे करना है? पेश को पढ़ते वक्त। और झुकाना कहाँ पे है? जेर को पढ़ते वक्त। जैसे ये मिसाल है ना आपके सामने, लफज था कौल, है ना, कौल, कौल। तो इसको हमने अगर पढ़ लिया ना, कोल, कोल, तो इसमें होंठ गोल हो गए ना, तो ये गलत इसकी अदायगी हो रही है। या होंठों को नीचे, कैल, कैल, तो ये भी गलत है। इसको सीधा मुंह खोलकर अदा करेंगे, कौल, कौल। ठीक है। इसी तरह अल्हम्दु, इसको अगर हमने यूं पढ़ लिया ना, अल्हम्दु, अल्हम्दु, होंठों को गोल कर लिया अगर, तो फिर ये गलत हो जाएगा। इसी तरह अल्हम्दु, हम्दु, ऐसे भी नहीं पढ़ना, ये भी मजहूल तरीका हो जाता है फिर। इसमें होंठों को झुकाना नहीं है जबर की अदायगी में। ठीक है। अल्हम्दु, अल्हम्दु, अल्हम्दु। ठीक है। यानी कौला था तो इसको ओला पढ़ना ये गलत हो जाएगा, या फिर तैला ये भी पढ़ना गलत। और इसी तरह अल है, इसको अगर हम अल पढ़ें गलत है, अल पढ़ें तो भी गलत है। सीधा सीधा रखे जबर को, अलहम्दु। ठीक है। और दूसरी सूरत जेर है। जेर में मुंह नहीं खुलना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुंह तो जबर में खुलता है ना, या होंठों में गोलाई नहीं आनी चाहिए। ठीक है। जेर में अगर मुंह खुल जाए या होंठों में गोलाई आ जाए तो क्या होता है? मसलन अर्रहीमी, है ना, हमारे पास कलिमा है अर्रहीमी। अगर हम इसको यूं पढ़ेंगे ना मुंह खोल के, अर्रहीमी, रहीम, रहीम, है ना, रहीम, जैसे कि अभी तक भी कुछ लोग इस तरह से पढ़ते हैं, अर्रहीम में पढ़ना या अर्रहीमी, इस तरह से करके पढ़ना, तो ये गलत हो जाएगा। इसी तरह सिरात, सुई, सुई है ना, सुई, सिरात, इसको अगर हम मुंह खोल देना, सोए से पढ़ ले, इसको सिरात, सिरात,
यानी मजहूल तरीका हो जाता है, तो वो भी गलत है। या सुई, सुई वो तो यानी गोल करने के चक्कर में ना, ये मोटा है ना, स्वाद को मोटा करने के चक्कर में तो जेर को गोल ही करते हैं, तो ये गलत तरीका है। सुई, सुई रोत, बल्कि सुई, सुई रोत, सुई रोत। ठीक है, इस तरह इनको सही से अदा करना है। और पेश में किस चीज से बचना है? अगर पेश को पढ़ते वक्त मुंह खुल जाए, मुंह तो जबर में खुलता है ना, और होंठ अगर नीचे की तरफ माइल हो जाए जो कि जेर में होते हैं, तो फिर पेश की अदायगी गलत होगी। जैसे आपके पास कलिमा है फकुलूहु, ठीक है, फकुलूहु, इसको अगर हमने मुंह खोल के पढ़ लिया ना, फ कोलोहो, है ना, फ कोलोहो, इस तरह भी कुछ लोग पढ़ लेते हैं ना, तो ये गलत है। फकुलूहु बल्कि फकुलूहु। और अगर हम इसको होंठ नीचे की तरफ करके पढ़े तो कैसे पढ़ा जाएगा? फकुलूहु, फकुलूहु, है ना। अजीब सी आवाजें निकलेंगी, अजीब से शक्ल, मुंह के बनेंगे जाविये, तो ये तरीका गलत है। इसको बिल्कुल सही अदा करें, जैसा कि पेश को अदा करने का तरीका क्या तरीका था? होंठों को गोल और ना तमाम बंद करके। मसलन फकुलूहु, फकुलूहु, पढ़ने की कोशिश करें आप साथ इसको, आपको समझ आएगी कि पेश पढ़ते वक्त होंठ गोल होते हैं, लेकिन उनको पूरी तरह जोड़ना नहीं है आपस में। इसी तरह लफज है इन्नी तुबतु, है ना, तुबतु, इसको अगर हम पढ़ लें मुंह खोल के, इन्नी तौबतो, 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 तो ये मुंह खुलता है ना कितना ज्यादा, तो ये मुंह तो खुलता है जबर में, पेश में तो नहीं खुलना चाहिए ना। इसी तरह होंठ अगर नीचे की तरफ झुक जाए, जैसे तुबतु, तुबतु, है ना, तो ये भी गलत है। पेश को पढ़ने का तरीका गलत हो रहा है। बल्कि कैसे पढ़ना है? होंठों को गोल और न तमाम बंद करके, तू भी तू भी तू, ठीक है, ये इनको सही अदायगी का तरीका है। अगर पेश में मुंह खुल जाए या होंठ नीचे की तरफ माइल हो जाए, तो दोनों सूरतों में पेश की अदायगी गलत हो जाएगी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि इसके बाद आपको समझ आ गई होगी कि हमने हरकत को कैसे पढ़ना है, हरकत है क्या, उनको पढ़ने का तरीका क्या है, और उनमें हमने किस चीज से बचना है। तो दूसरी बात यह है कि हरकत को खींचने से भी बचें। खींचने से मुराद हरकत को लंबा लंबा करके नहीं पढ़ना, क्योंकि अगर हमने जबर को लंबा किया ना, तो उसमें अलिफ की आवाज आएगी। जेर में जेर को लंबा करेंगे तो उसमें या शामिल हो जाता है, और पेश को लंबा करें तो उसमें वाऊ पैदा हो जाती है। जैसे हम पढ़ के देखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि, है ना, अल्हम्दुलिल्लाहि, इसमें हा की जबर को, दाल की पेश को, और हा की जेर को, ये जो लिल्लाही में ये वाला हा है ना, इसकी जेर को अगर हम खींच कर पढ़ेंगे ना, कैसे, जैसे अल्हामदु, अल्हामदु लिल्लाहि, तो ये गलत हो जाएगा। इनको बिल्कुल भी खींचना नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाहि, ना कि अल्हम्दुलिल्लाहि। जैसा कि हमारे बाद साथी अभी तक भी कुरान ऐसे ही पढ़ते हैं, और ये हराम है इस तरह से पढ़ना। इसीलिए तो कहते हैं कि तजवीद सीख लेनी चाहिए, ताकि हम कुरान की कलिमात में ऐसी गलतियों से बच जाएं। ठीक है, और तीसरी चीज क्या है, किस चीज से बचना है? जबर में मुंह को ज्यादा ही खोल देना, और जेर और पेश को मजबूल पढ़ने से बचना है। जैसे लफज है अल आलमीन, आइन की जबर है ना, अब इसको इतना ज्यादा मुंह खोल दें कि वो ना अपनी हद से बाहर हो जाए। जैसे अल आलमीन, 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 इस तरह से करके ना, तो ये ज्यादा मुंह इतना ज्यादा खोल दें कि लफ्ज खराब हो जाए, उसका तलफ़ुज़, उसकी तजवीद, उसकी सिफात सारी खत्म हो जाए, तो ये गलत है। अल आलमीन, ठीक है। इसी तरह
मालिकी ईया का लफज है तो हम बोल दें मालिकी। मालिकी, अजीब सा, इतना बड़ा मुंह खोल के पढ़ना इसको, तो ये गलत है। मालिकी इय्याक, 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 ये पढ़ना गलत है, बल्कि इसको सीधा सीधा अच्छे अंदाज में पढ़ें, इय्याक। ठीक है। इसी तरह फिर लिल्लाही मालिकी, इसमें जेर को भी मजहूल नहीं पढ़ना, जैसे बाज लोग पढ़ते हैं लिल्लाह, है ना, लिल्लाह, ऐसे नहीं पढ़ना इसको। जेर का साउंड मैंने आपको बताया ई, तो लाम के नीचे आ गया तो ली, हा के नीचे आ गया तो ही, ले और हे नहीं, ठीक है। क्योंकि जेर का साउंड ई है, ए नहीं है, इसलिए भी हो जाएगा लिल्लाही। इसी तरह मालिकी, इसको पढ़ लेना माँ लेके यौमिद्दीन, है, तो ये गलत है, जेर का साउंड गलत हो रहा। क्या होगा ये, मालिकी, ले के नहीं है, मालिकी, मालिकी। फिर इसी तरह अल्हम्दु नाबुदु, इसमें पेश आ रहा है ना, तो पेश को मजहूल नहीं पढ़ना, जैसे अल्हम्दो, अल्हम्दो नाबुदो, इस तरह पढ़ते हैं ना लोग, इस तरह नहीं पढ़ना। अल्हम्दु नाबुदु, ये इनका सही तरीका है पढ़ने का, कि होंठों को गोल करना और पूरी तरह से बंद नहीं करना। ठीक है। अल्हम्दु नाबुदु, ना के अल्हम्दो नाबुदु, ये तरीके गलत हैं। आपके साथ ही अगर कभी किसी को आप ऐसा पढ़ते सुने तो जरूर भी जरूर उनकी इस्लाह करें, आप पे फर्ज है। ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आज हम सबको ही जबर जेर पेश की अच्छी समझ आ गई होगी, उसको पढ़ने का तरीका भी समझ में आ गया होगा कि कैसे पढ़ना है और किन चीजों से हमने बचना है। ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला मजीद हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, बाकायदा तौर पे हम कुरानी कायदे से भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ताकि जो हम पढ़ रहे हैं वो अच्छे से हमें समझ में आ जाए। तो इसके साथ ही यहाँ से इजाज़त दीजिए, बाकी सवालात इंशाल्लाह ताला अभी मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूँ, फिर आपसे सवालात लेते हैं। दुआ पढ़ लेते हैं, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।